Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will start with the question number 10, exercise 8.3. And the question number 10 is, what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? Very easy sum. अब इस क्वेश्चन में क्या है गिवन हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना 280 रुपीज and we have also given principal amount that is equal to 56,000 and time period 2 years. Clear? और हमने क्या find out करना है? We have to find the rate of interest per annum. Clear? So first of all write down here simple interest is equal to rupees 280 and principal amount is equal to rupees 56,000. Time period is equal to 2 years. And what we have to find out? We have to find out the rate of interest per annum. Clear? Now, फॉर्मूला हमने बेटा सेम वही यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट वाला ही. मीन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड ओवर 100. क्लियर? यहां से आप पहले रेट जो है यहां से ड्राइव कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से ड्राइव कर लो और उसके बाद जो वैल्यूज गिवन है उसमें पुट करके जो रेट है वो हमने फाइंड आउट कर लेना. क्लियर? तो 100 सिंपल इंटरेस्ट के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई C. क्लियर? अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल और टाइम जो है इन दोनों को आप इसके नीचे ले आइए. तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P मल्टीप्लाई T एंड दिस इज इक्वल टू R. क्लियर? मींस जो R है वो ड्राइव करके हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर principal amount multiplied by time period. Clear? Now putting the value of SI, P and T here, we get R. So R is equal to SI कितना? 280. So it becomes 280 multiplied by 100 over 56,000 multiplied by 2. क्योंकि टाइम पीरियड कितना है? 2 years. क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया. 28 1 का 28 28 2 का 56. तो R कितना आ गया हमारे पास? 1 over 2 multiply 2 means 1 over 4. Clear? And 1 over 4 can also be written as 0.25. It means the required rate of interest per annum. Required rate of interest per annum is equal to 0.25%. So this is the required. Next is question number 11. If Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? Clear? अब देखिए यहाँ पे लिखा है What is the sum she has borrowed? मतलब जो borrowed money है, borrowed money means principal amount, और वही हमने find out करना है. और क्या क्या given है हमें? Meena gives an interest of rupees 45 means simple interest given है 45 rupees for 1 year. Time period given है कितना? 1 year at 9% rate per annum and also rate of interest is equal to 9% per annum. Clear? And what we have to find out? We have to find out the sum she has borrowed means we have to find out the principal amount. Clear? So first of all write here simple interest is equal to rupees 45. Rate of interest is equal to 9% per annum and time period is equal to 1 year. And we have to find principal amount. Clear? फॉर्मूला बेटा सेम हमने वही यूज करना सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100. क्लियर? अब हमने यहाँ P की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो P का फॉर्मूला यहाँ से हमने ड्राइव कर लेना है. तो P किसके इक्वल आ जाएगा? SI मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T. अब हमने P जो है फाइंड आउट करना है, तो R और T को जो है आपने इसके नीचे ले आना है.
So it becomes SI multiply 100 over R multiply T and this is equal to P. Means जो principal amount है that becomes equal to SI multiply by 100 over R multiply by T. Clear? Now SI is equal to 45 rupees multiplied by 100, rate of interest 9 and the time period is 1. Clear? So 9 ones are 9, 9 5s are 45. So P is equal to 5 multiplied by 100 and this is equal to 500. It means the required sum she has borrowed, required sum is equal to rupees 500. Clear? So this is the required. Yes, beta. Next is chapter 4, simple equations and question from assignment. First question जो है, solve the following equation and check your result. तो इसमें जो second part है, 2 multiply f minus 2 ब्रैकेट के अंदर है ये प्लस 3 4f minus 1 is equal to 7. सॉल्व मीन्स जो वेरिएबल की वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, वो हमने फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? f. क्लियर? तो हमने यहाँ पे f के लिए सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको चेक करके हमने देखना भी है कि वो हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. ठीक है? चेकिंग में हमने ये करना होता है कि हमने वेरीफाई करना होता है कि जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है वो हमारा करेक्ट है कि नहीं. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ f. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है, इट मींस 2 f के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 2 के साथ भी होगा. तो 2 f के साथ हुआ तो ये हो गया 2f माइनस 2 2 जा 4 एंड देन प्लस 3f जो है 4f के साथ भी होगा, 3 जो है माइनस 1 के साथ भी होगा. 3 4 जा 12f, 3 माइनस 1, 3 into माइनस 1 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 7. क्लियर? अब जो f वाली वैल्यूज है उनको कंबाइन कर लीजिए. तो ये आ गया 2f प्लस 12f एंड देन माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. क्लियर? 2 प्लस 12 14f माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. क्लियर? 14f अब जो माइनस 7 है इसको ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड. तो वी गेट 14f इज इक्वल टू 7 plus 7, which implies 14f 7 plus 7 14. Now dividing both sides by 14, we get 14f divided by 14 is equal to 14 divided by 14. तो ये 14 से 14 कैंसिल, इस 14 से 14 कैंसिल. So we get f is equal to 1. So the required value of f is equal to 1. अब हमने ये चेक करके भी बताना है कि ये आंसर हमारा करेक्ट है कि. क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा चेक योर रिजल्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, चेकिंग में हमने सबसे पहले कौन सी साइड लेनी है? लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एफ माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 एफ माइनस 1. क्लियर? अब f की वैल्यू 1 इससे सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए. तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1. क्लियर? तो ये आ गया 2 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 4 इंटू 1 4 एंड देन माइनस 1 3. क्लियर? so we get 2 into minus 1 plus 3 into 3. 2 into minus 1 minus 2 plus 3 into 3 9. तो क्या आ गया फाइनली हमारे पास minus 2 plus 9 and this is equal to 7. क्लियर? और राइट हैंड साइड कितनी वैल्यू है? 7. राइट हैंड साइड जो है ऑलरेडी कितना है? 7. इसका मतलब f की वैल्यू 1 जो है इस इक्वेशन में पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए. इट मींस हमारा जो आंसर है f इज इक्वल टू 1 वो करेक्ट है. क्लियर? तो हमारा रिजल्ट भी जो है वो वेरीफाई हो गया. क्लियर? Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence,
checked. Hence checked लिख दीजिए या hence verified. Clear? So this is our solution. Next is fifth part, and fifth part is 3 into y minus 1 by 3 is equal to 2 into 2y minus. अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, y. It means we have to find the value of y. Clear? So start doing. Now multiply 3 by y, multiply 3 by 1 by 3 means जो 3 है y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है 1 by 3 के साथ भी होगा. क्लियर? ये जो है मैंने ऑलरेडी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी एक्सप्लेन किया. क्लियर? अगर दो टर्म्स हैं बाहर ये कांस्टेंट वैल्यू है या कोई और वैल्यू है तो वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी. क्लियर? तो 3y के साथ मल्टीप्लाई हो कितना हो गया 3y. 3 जो है 1 by 3 के साथ भी कीजिए, इधर 2 जो है 2y के साथ भी होगा तो कितना हो गया 4y. 2 जो है -6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया -12. अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास 3y minus 1 is equal to 4y minus 12. क्लियर? अब आपने क्या करना है, y वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ रखनी है एक साइड पे, और जो दूसरी कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी साइड पे रखनी है. क्लियर? तो हम ये 3y को जो है उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया हमारा -1 is equal to 4y minus 12 minus 3y. क्लियर? अब ये जो -12 कांस्टेंट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया -1, नेगेटिव का था तो इधर आके पॉजिटिव हो गया +12 एंड दिस इज इक्वल टू 4y minus 3y. Clear? Now -1 plus 12 is equal to 11 and 4y minus 3y is equal to y. It means y is equal to 11. Clear? तो सॉल्व करके y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 11. अब हमने रिजल्ट भी अपना चेक करना है. क्लियर? अब रिजल्ट को चेक करने के लिए सेम जो प्रोसीजर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉलो किया वही फॉलो करना है. पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है चेकिंग के लिए. सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 into y minus 1 by 3. और y की वैल्यू कितनी आई हमारी 11. वो y की वैल्यू 11 यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये आ गया 3 into 11 minus 1 by 3. क्लियर? अब ब्रैकेट के अंदर पहले जो वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ गया 3 11 minus 1 by 3. इसके नीचे हमने 1 लिख दिया तो ये आ गया 3 1 और 3 के एलसीएम 3. so here 11 multiply by 3 and here we get -1. क्लियर? तो ये आ गया 3 11 3 का 33 -1 over 3. तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया 31 33 minus 1 कितना हो गया 32. क्लियर? इट मींस लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया हमारे पास 32. अब इसी तरह हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू भी जो है फाइंड आउट करनी है. देन y is equal to 11. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 into 2y minus 6. अब y की वैल्यू 11 यहाँ पुट कीजिए तो ये आ गया 2 into 2 multiply 11 minus 6. क्लियर? तो 2 into 11 22 minus 6. This is equal to 2 22 minus 6 कितना हो गया 16 and 2 multiply 16 is equal to 32. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए. इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट है जो हमने वैल्यू y is equal to 11 फाइंड आउट की है वो करेक्ट है. क्लियर? Therefore left hand side is equal to right hand side, hence verified. Clear? Next is sixth part, and sixth part is a over 8 plus 5 over 4 is equal to 2. अब इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है a. So we have to find the value of a and then check the result. Clear? तो बहुत इजी है ये सम. a over 8
इस 5/4 को आप ट्रांसपोज कीजिए दूसरी साइड, तो ये हो गया 2 - 5/4, राइट। अब इसके नीचे आप 1 लिख लो, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, क्लियर। तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड देन -5, क्लियर। तो a/8 इज इक्वल टू 2 × 4 - 5/4 एंड दिस इज इक्वल टू 8 - 5/4, clear. So we get a/8 is equal to 8 - 5, 3/4, right. अब देखिए नेक्स्ट क्या करना हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8, so we get a/8 multiply 8 is equal to 3/4 multiply 8. ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, clear. So we get a is equal to 3 multiply 2 which is equal to 6, clear. तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6. अब हमने इसको चेक भी करना है. So first of all taking left hand side for checking and putting the value of a is equal to 6. So we have left hand side is equal to a/8 plus 5/4, क्लियर. अब a की वैल्यू 6 यहाँ पुट कीजिए, तो ये आ गया 6/8 प्लस 5/4. अब देखिए ये कटिंग भी हो सकता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, so we get 3/4 plus 5/4, क्लियर. एंड दिस इज इक्वल टू 3 plus 5. जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा सॉल्व करके इसको, 3 plus 5/4, 3 plus 5 8, 8/4, क्लियर. तो अब यहाँ पे कटिंग भी हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया 2. और राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास कितना है 2. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, क्लियर. Therefore left hand side is equal to right hand side, hence verify. Means हमारे जो रिजल्ट a is equal to 6 आया है वो करेक्ट, क्लियर.